Hello students, welcome. We have started our new chapter, that is ratio and proportion. Okay, we have discussed what is meant by ratio and how to find the simplest form of a ratio and how to read it, as well as how to convert a fraction into ratio, as well as ratio into fraction. Okay, now we will discuss some problems from your exercise 8.1. We are going to solve one problem from your each question. Okay, so first of all we start with the question number 1. Okay, in a question number 1, in a exercise 8.1, question number 1, check whether the given ratios are equivalent or not. Check whether the given ratios are equivalent or not. Means we have to check that द गिवन रेशियो, जो हमको गिवन रेशियो है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, वो चेक करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 3:5 कॉमा 12:20. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये दो रेशियो क्या करने हैं, चेक करने हैं किसमें इक्विवेलेंट है कि नहीं. फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बोथ द फ्रैक्शन. दोनों फ्रैक्शन का हमको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा. 3:5 का सिंपलेस्ट फॉर्म यही है. इससे और सिंपलेस्ट उसको कर सकते क्या, नहीं, बट हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते आता है, दैट इज 12/20. एंड वी नो दैट 12 and 20 both are divided by 4. Both are divided by 4. So divide them by 4. You will get 4 3s means 3. And 4 5s are 3/5, means it becomes 3:5, and this is 3:5. means अगर हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट किया तो हमको क्या मिला, 3:5. और हमारा फर्स्ट टर्म भी क्या था, फर्स्ट रेशियो भी क्या था, 3:5. means both the ratios are equal, means both ratios are equivalent, means 3:5 and 12:20 are equivalent ratios. Okay, in this way you have to solve all other problems. Okay, in a question number 2 of exercise 8.1, the marks obtained by the students in the two subjects are given below. Find in which subject the student has performed well. Student has performed well. Okay, in a question number 2 you have asked that there are two students. There are students in the two subject. दो सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है. ओके, आर गिवन बिलो. फाइंड विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज परफॉर्म्ड वेल. किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया. ओके, सो फर्स्ट इन ज्योग्राफी में he got 17 out of 25. Okay, and history he got 12 out of 20. अब if we have to compare these two fraction, or you can say 17:25, say 12:20. If you have to compare these two ratio or two fraction, first of all you have to find the LCM of their denominator. अब LCM क्यों फाइंड आउट करना है इन दोनों डिनोमिनेटर का, क्यों, बिकॉज हमको इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे. या ही आप इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करो. सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करो तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा क्या, नहीं, इसका हो सकता है बट इसका नहीं, क्योंकि 17 और 25 में कॉमन नहीं है. अब इन दोनों को फाइंड आउट करते वक्त इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना चाहिए. ओके, नाउ और एलसीएम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, टू मेक देयर डिनोमिनेटर इक्वल. सो वी नो दैट इफ यू मल्टीप्लाई 25 by 4 and if you multiply by 20 by 5, so multiply by 5, multiply by 4, it becomes 25 100 and 17 4 8, 2, 4 1 4, 4 1 4 plus 2 6. Okay, now
12 500. Okay, now we have these two fractions. Okay, here in this both the denominators are equal and the numerator किसका बड़ा है? फर्स्ट टर्म ज्योग्राफी का. किसका? ज्योग्राफी का. मीन्स ज्योग्राफी में क्या है? ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है. किसने? स्टूडेंट्स ने. ओके, यू कैन से दैट लाइक एट लास्ट यू हैव टू राइट स्टूडेंट परफॉर्म्ड better in geography. Okay, इस तरीके से. Understand? Now let's move on to our third question. In a third question, express the following ratios in the simplest form. You have to write simplest form. ओके, व्हाट इज मीन बाय सिंपलेस्ट फॉर्म? आपको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना मतलब क्या है? उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरीके से बनाने हैं कि उन दोनों में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ओके, सो अब हम फाइंड आउट करेंगे 2/2, दैट इज फर्स्ट ए 2.5 लीटर इज टू 600 milliliter. Okay, while writing the simplest form of this type of factor, अगर डायरेक्ट न्यूमरल्स होता तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली सिंप्लीफाई सॉल्व करना पड़ेगा. बट यहां पे देखो यूनिट क्या है? इसका लीटर है और इसका मिलीलीटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द यूनिट सेम. आपको क्या करने पड़ेंगे? यूनिट सेम करने पड़ेंगे. सो मेक लीटर, यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मिलीलीटर. सो 2.5 लीटर मीन्स 2 लीटर मीन्स होगा 2000 ml एंड हाफ लीटर होगा 500 ml. सो ओवरऑल 2.5 लीटर मीन्स 2500 ml. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इन द सेम यूनिट. सेम यूनिट में किया तो क्या हो जाएगा? 2500 ml इज टू 600 ml. अब यूनिट सेम हो गए. अब आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है. तो राइट इट इनटू द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 2500 अपॉन 600. ओके, सो दिस गेट कैंसल आउट. यू विल गेट 25/6. सो इट बिकम्स 25:6. सो रेशियो क्या हो जाएगा? 25:6. तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इस रेशियो का? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो इज 25:6. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल अदर प्रॉब्लम्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1. ओके, फाइंड द रेशियो ABC in the following. A is to B is to C. Find, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है. A is to B is to C. And first problem is that A is to B is equals to 1 is to 2 and B is to C is equals to 4 is to 3. Okay. अब आपको यहां पे क्या करना है? A is to B, B is to C. ये रेशियो फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो आपको गिवन क्या है? ए और बी के बीच में का रेशियो गिवन है. ए इज टू बी इज 1:2. ओके, एंड बी इज टू सी का भी रेशियो गिवन है 4:3. तो इन दोनों रेशियो में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या है? बी आर कॉमन इन बोथ. सो बी यहां पे क्या है? 2 और बी यहां पे क्या है? 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज करनी है. यहां पे जो 2 है, बी की वैल्यू 2 है, तो आपको दोनों को इक्वल बनाना है. दोनों को इक्वल बनाना है. अंडरस्टैंड? सो अब यहां पे ए इज टू बी या ए इज टू बी को हम कैसे लिखेंगे? ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1:2 है, 1/2 एंड बी अपॉन सी इज इक्वल टू 4/3 है. सो नाउ
मेक दिस b इज इक्वल टू 2 है, उसको इसके इक्वल में बनाओ, 2 2 जा 4, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो a अपॉन b बिकम्स 2 अपॉन 4, a अपॉन b बिकम्स 2 अपॉन 4, मीन्स a इज टू b क्या बन जाएगा, 2 इज टू 4 एंड b इज टू c क्या रहेगा, 4 इज टू 3। नाउ अब यहां पे देखो a इज टू b क्या है, 2 4, और b की वैल्यू यहां पे भी 4 है, b की वैल्यू यहां पे भी 4 है। अब वैल्यू सेम हो गई, मीन्स a इज टू b इज टू c, यू कैन राइट इट एज a की वैल्यू क्या है 2, b की 4 एंड c की 3। सो दिस in this way you can find the ratio between three terms. Understand? आपको इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, इन सेकंड क्वेश्चन आपको वही सेम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे b की वैल्यू 7 है और उस सेकंड फ्रैक्शन में सेकंड रेशियो में क्या है, b की वैल्यू 6 है। आपको दोनों का एलसीएम 6 7 जा 42, दोनों को 42 बनाओ, आपको इजीली मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ इन अ फिफ्थ क्वेश्चन, in our fifth question, it is very easy. In a question number 5, divide 5,200 rupees, 5,200 between Sudhir, Lakshman and Abraham. Between Sudhir, Lakshman and Abraham. Okay, in the ratio 2:4, 2:7:4, मीन्स आपको इतने रुपए इन तीनों में, दैट इज सुधीर, लक्ष्मण और अब्राहम में बांटने हैं। बट रेशो कैसे आना चाहिए, सुधीर को 2 पार्ट्स जाना चाहिए और लक्ष्मण को 7 और अब्राहम को 4 पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर एक रोटी 3 बच्चों में बांटनी है, ओके, एक रोटी आपको 3 बच्चों में बांटनी है, तो आप क्या करते हो, एक रोटी के 3 हिस्से करते हो। अंडरस्टैंड? एक रोटी के 3 हिस्से करते हो और उसी रोटी को आप एक एक को पर्सन को देते हो। वैसे ही सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपके पास टोटल कितना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और बाद में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेशियो। द टोटल रेशियो इज 2 + 7 + 4 is equals to 7 + 2 is 9, 9 + 4 is 13। ओके, अब आपके पास टोटल रेशियो कितना है 13। नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस 13 पार्ट, आपके पास कितने पार्ट है 13 पार्ट, इनटू दिस 3 पर्सन्स, दैट इज सुधीर, लक्ष्मण एंड अब्राहम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सुधीर, सुधीर को आपको कितने देने हैं, 13 में से आपको सुधीर को कितने हैं देने, 2 पार्ट्स। 13 में से 2 पार्ट्स आपको सुधीर को देना है, पर आउट ऑफ कितने में से, 5,200 में से। सो फाइंड आउट, यू विल गेट तो ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 52 एंड 2 0 मीन्स 2 4 जा 2 multiplied by 400, it becomes 800. So Sudhir get rupees 800. Then next Lakshman, get 7 out of 13 multiplied by 5,200. So it becomes 3 1 जा 3, 3 4 जा 400. So 7 multiplied by 400 is equals to 2,800 rupees. Okay, and then after that Abraham
got get 4 upon 13 multiply by 5200. So 3 1s are 3, 3 4s are. So it becomes 4 multiplied by 400. So 4 4s are 16. So rupees 1600. Now अब क्या हुआ, हमने क्या फाइंड आउट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया टोटल हमारे पास कितना है, और उतने में से हमको 2 पार्ट्स इसको देने थे सुधीर को, 13 में से 7 पार्ट लक्ष्मण को देने थे, 13 में से 4 पार्ट अब्राम को, इसलिए हमने उनका फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन फाइंड आउट किया और टोटल को मल्टीप्लाई किया. सिंपली इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, अंडरस्टैंड, फॉर अदर प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पे क्या है, अपने तीनों को दिए वाले पैसे याद है. अब तीनों को जितने पैसे मिले वो किसके इक्वल होने चाहिए, टोटल अमाउंट के, है या नहीं चेक कर लो. That is, if you add these 3 number, you will get 0, 0. 8 8s are 16. 16 plus 4. 16 plus 4, 20. 20 plus 2 is 2. 1 carry. So 1 plus 2. 1 plus 2. 1 plus 2. 2 carry होगा. 2 plus 2 is 4. Plus 1 is 5. 5200. आ गया? Correct उतने ही rupees. So it suggests that our answer is correct. Our answer is correct. So in this way you can solve all other problems. Okay. So exercise 8.1 is a homework for you. In the next video we will start our new topic, that is proportion. I hope you understand, student. Thank you.